It was my fault. I should have qualified something. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON DVD founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrittacharya. Astodar Sat Shri Srimad, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. All glories to Asana. All glories to Asana. All glories to Asana. All glories to Shri Guru and Shri Ram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद 7वां अध्याय में से 40वां नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। विष्णु रूपेण गणनं कतमोऽप्यह या पार्थिवानि अपि कारिवामि राजंसि चक्षं वया स्वरपा सकलात्युपृष्टं यस्मात् त्रिसंज्ञ सदनात् उरुकाम्ययानाम्। Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even a scientist who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so, because it is he only who in his form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet, Satyaloka, up to the neutral state of the three modes of material nature, and all were moved. Perfect by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The highest scientific advancement of the material scientist is atomic energy. But the material scientist is not able to have an estimation of the particles of atoms contained in the whole universe. But even if one is able to count such atomic particles, or is able to roll up the sky like one's wedding, even then one is unable to estimate the extent of the prowess and the energy of the Supreme Lord. He is known as Trivikrama because once in his incarnation as Vamana, he expanded his leg beyond the highest planetary system, Satyaloka, and reached the neutral state of the modes of nature called the covering of the material world. There are 7 layers of the material coverings over the material sky, and the Lord could penetrate even those coverings. With his toe, he made a hole through which the water of the causal ocean filters into the material sky, and the current is known as the sacred Ganges, which purifies the planets of the 3 worlds. In other words, no one is equal to the transcendently powerful Vishnu. He is omnipotent, and no one is equal to or greater than him. Om ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रवणामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्य
राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientist who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so. Because it is he only who, in his form of Trivikrama, moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyaloka, up to the neutral state of the three modes of material nature, and all their meanings. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और आपसे सभी श्रोताओं से ये अपेक्षा है कि आपके आशीर्वाद से एक ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जो कथा हम शुरुआत किए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें और भगवान और भक्तों की असीम कृपा से ये जो सबसे उत्तम कार्य है हम आगे बढ़ते जाए तो भगवान और उनके भक्तों के आशीर्वाद से ये परम पुण्य कर्तव्य कार्य हमें जो सौंपा गया है हम कर सकेंगे। तो जैसे हम ये जो अध्याय दूसरे स्कंद भागवतम में कोई बता सकते हम कौन से अध्याय में हैं और क्या चल रहा है? दूसरा अध्याय 7वां या और 40 दूसरा अध्याय में से 7वां दूसरा स्कंद भागवतम से 7वां अध्याय चल रहा है जिसमें श्री ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी का वार्तालाप हो रहा है और
नारद मुनि ब्रह्मा जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो एंटायर जो दूसरा स्कंद भागवतम श्री ब्रह्मा जी नारद जी को उनके अलग अलग प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें ये अध्याय आ गया था जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के विस्तार पूर्वक बहुत सारे अवतार के बारे में बताते हैं कि भगवान के कितने सारे अवतार हैं, और हमें वो अवसर मिला था कि हम कैसे एक एक अवतार के लीला में थोड़ी बहुत हमारी एक त्रुटि ज्ञान से हम कुछ बोल रहे थे। संपूर्ण ज्ञान तो हमारे पास तो नहीं है, पर जितनी ज्ञान ये मंदमति और बुद्धि से हम कितने हमारे शुद्धिकरण के लिए बोल सकते हैं, हमने उतने प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे अवतार थे, जैसे हमने नर नारायण ऋषि के बारे में बताया था, और उसके बाद भगवान ऋतु महाराज के बारे में बताए थे, उसके बाद भगवान वराह देव, वामन देव, परशुराम, और भगवान की असीम कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के बारे में थोड़ा बहुत उसको जो स्पर्श किए थे। और आज मैं ऐसे ही देख रहा था भागवत, आज किस बारे में बताऊं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के 10वां स्कंद भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में संपूर्ण बताया गया। और अगर उनकी आशीर्वाद और कृपा है तो हमारी ये जो गति से हम जा रहे हैं, अगर उनकी असीम कृपा है तो हम उस तक पहुंच सकते हैं, पता नहीं। तो प्रभुपाद बताते कि ये उनकी असीम कृपा होना चाहिए। पर भागवतम, श्रीमद् भागवतम ऐसी ग्रंथ है तो उसको किस भाग से भी आप उसका रस आस्वादन करोगे तो उसका आस्वादन हमेशा मिठास ही रहता है। तो जैसे मैं ये पढ़ रहा था तो आज मैं सोच रहा था भगवान की कौन सी लीलाओं के बारे में बताओ। तो तभी बाबा जी ब्रह्मा नारद जी को बताते हैं कि कलयुग शुरुआत होते ही और भगवान द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करते ही श्रीपाद भगवान व्यास देव के रूप में अवतार लिए थे। सत्यवेश अवतार कोई बताते और कोई बताते कि ग्रंथ के रूप में जो उन्होंने आज हमें इतने शास्त्र दिए हैं, अगर श्रीपाद व्यास देव नहीं लिखते थे तो आने वाली पीढ़ियां जो कलयुग में है इनको मार्गदर्शक करने के लिए कोई चांस ही नहीं था। एक्चुअली क्यों ऐसे हम कलयुग को इतना तुच्छ समझते हैं? क्यों ऐसे तो कलयुग हमेशा बोलते आप तुच्छ हो। बताते हैं कि ये कलयुग, बताते कि ये आयन एज है। आयन एज मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लोखंड। जो सोना, उसके बाद बताते कि चांदी, और उसके बाद ब्रॉन्ज, और लास्ट रहता है आयन, लोखंड। उसको मेटल्स में उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं है तो उसको लास्ट मेटल दिया जाता है। बताते कि उसी तरह जो अपने जीवन में सदाचार, आचर और अपने सभी के रहन सहन में एकदम सिस्टमैटिक शिष्टाचार फॉलो करने वाले सब कुछ गए हैं। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग में उन लोग एकदम, उनके रहन सहन, उनकी सभी, अगर आप शास्त्र में पढ़ते, उनका लाइफस्टाइल ही अलग था। और आयु में भी उनके एकदम सभी, आजकल हम सोचते हैं कि 100 इयर्स मतलब बड़ा अचीवमेंट है, पर सचमुच देखा जाए अगर ज्ञान हो, पुराना शास्त्र में हो, तो पता नहीं कि ये तो एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम आयु है, एक गिनती में भी नहीं आता है।
तो बता दें कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो वो तो उनका जीवन परिपूर्ण कर दिए गए, करके हो चुके हैं उन लोग। जैसे हम उदाहरण देते ना, कभी कभी हम चावल या कोई गेहूं या कोई बाजरा या जो भी है उसको छानने के लिए हम लोग साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? छाननी यूज करते हैं। तो जो एकदम प्योर फॉर्म है वो निकल जाता है और बचता क्या है? कचरा। मतलब थोड़ा और उसको रिजेक्टेड लॉट में डालते हैं। जैसे कोई प्रोडक्शन इंजीनियर हो या बड़े कॉर्पोरेट में लिखते हैं ना, पहले उसको प्रोडक्शन को करेक्ट सिस्टमैटिक रहता है तो पहले उसका करेक्ट वो देखते हैं कि बेस्ट क्वालिटी कौन सा है। उसमें थोड़ा भी मिस्टेक हो तो साइड में हटा दो, यू आर इन अ रिजेक्टेड लॉट। उसको रिजेक्टेड इसमें बोलते ना एक उसमें एक शेल्फ में रखा जाता है, वो रिजेक्टेड है, उसको हम बाद में देखते हैं, अभी इम्पोर्टेंट, उसको ज्यादा महत्व दिया तो ये इम्पोर्टेंट। तो शुद्ध फॉर्म सब कुछ चल गया, चला हुआ है, एवरीथिंग इज गॉन। बचा कौन है? ये कचरा। तो बताते हैं कि कलयुग में जो ये रिजेक्टेड लॉर्ड है, जो पास नहीं हो चुके उनको साइड में रखा गया है। कली मंदमती सुमंदमतयो, मतलब कलयुग में जो रिजेक्टेड लॉर्ड लोग हैं उन लोग की जन्म ली है। अभी उसमें जैसे कभी कभी हम एक बार शुभ विलास में उदाहरण दे रहे थे, बोलते नहीं एक कचरा डब्बी रहता ना, कचरे का पट्टी डब्बी, उसमें बता दें कि ऊपर का तो कचरा एकदम निकल जाता है, पर वो नीचे का जो कचरा रहता है ना, पता है इतना घास मारता है उसको, कचरा निकालने वाला भी निकालता है, रहने दो, सड़ने दो, अरे कौन देखेगा, कौन उसको डालो किधर। उसी तरह बताते हैं कि कलयुग मीन्स द मोस्ट फॉलन, सबसे घिरे हुए व्यक्ति है। कोई चांस होप ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। और उसमें हम लोग का हमारी मूर्खता ना क्या है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि रिजेक्टेड लॉट में मैं फर्स्ट हूं। ऑलरेडी बताते कि पासिंग मार्क ही 35 था और सभी लोग 33.4%, और जिसने 35% कैसे, मैं देखो कितना होशियार हूँ, पर बाकी लोग बोलते यार मूर्खता है, उसको पता नहीं कि 100% इज हाईएस्ट, वो 35% किया तो वो सोचते कि बड़ा। उसी तरह कलयुग में कलो शूद्र संभवा, कलयुग में कोई हाईएस्ट वाला कोई जन्म नहीं लेता है, सब शूद्र संभवा, मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन ही लेते। उसमें शूद्र में फर्स्ट समझना वो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते ना फेलियर लोग का क्लास में पास होना, फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी फेलियर लोग है उसमें मैं फर्स्ट आ गया। पर इसका मतलब ये है कि भगवान हमें कोई कृपा नहीं रखेगा, इसलिए भगवान बताते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए बताते शास्त्र में कि भगवान का एक नाम है पतित पावन, पतित पावन, द लॉर्ड ऑफ द मोस्ट फॉलन। एक्चुअली हम ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जब तक हमें इसका वैल्यू पता नहीं है हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। हम दूसरे को देने का जो स्वभाव कभी उद्भव हो जाएगा जब हमें उसका महत्व पता चलेगा, तभी हम उसको दूसरे को दे सकते हैं। इसके लिए करुणा आना चाहिए, करुणा अवतार, करुणा, दूसरे के ऊपर करुणा आना चाहिए, तभी हम उसको दूसरे को कुछ दे सकते हैं। और दूसरा है कि खुद को पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है। हमें ही हमारा विश्वास गड़बड़ा रहा है तो हम सोचते कि हम कैसे बोले, क्या हमें संपूर्ण विश्वास है? इसलिए भगवान व्यासाय विश्वरूपाय व्यासाय ब्रह्मजिष्णवे, भगवान कलयुग में व्यासदेव के रूप में अवतार लेते हैं।
और सत्यवती के पुत्र होकर वो बद्रिकाश्रम में भगवान के बोलते कि बहुत सारे बोलते कि वेदांस लिखते हैं, चार प्रकार के वेद लिखते हैं और उसके बाद पुराणास लिखते हैं, क्योंकि उनको पता रहते, वो बताते कि वो भविष्य को देख सकते थे। भविष्य आने वाले कलयुग में लोग को कोई भक्ति में कोई रुचि नहीं है और आयु बहुत कम है, आयु बहुत कम है। सिर्फ आयु कम नहीं है, दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत डिस्टर्ब्ड, एकदम मतलब हर प्रकार की वेदना है ही उनके जीवन में। बोलते ना आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार की डिस्टर्ब्ड है। आपको खुद ही पता चलेगा, अगर किसी को भी बोलेंगे तो चलिए प्रभु जी सत्संग है या ये, अरे किसके पास टाइम है, नॉट इंटरेस्टेड। और अगर तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जब कलयुग का ये जो दुर्गति देखकर व्यासदेव जो त्रिलोकी ज्ञानी है, त्रिलोक्य दृष्टि, उनको पता चला कि आने वाले कलयुग में कोई चांस नहीं है भक्ति प्रगति करने के लिए। तो वो ये देखकर वो पुराणास, वेदास, ये सब प्रकार के इतिहास सब लिख देते हैं। कलयुग शुरुआत होने से पहले बोलते ना, जब वो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या कोई टीवी या मॉडल, उसके साथ मैनुअल निकलता है। अभी मार्गदर्शक के लिए कुछ गाइड तो होना चाहिए, तो उन्होंने पूरा रेडी है, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। कोई भी आया तो ये लो मैनुअल है, ये लो जीवन मनु संहिता, सब कुछ ऐसा भी रेडी है। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, जिसने लिखा था ये सब वेदास पुराणास ये सब लिखे थे, उनको ही सैटिस्फैक्शन नहीं है। अरे मैं तो लिखा हूं पर मुझे ही संतुष्टि नहीं है इसमें। मैं इतना सब पुराणास ये सब लिखा हूं पर मुझे ही संतुष्टि नहीं है। जैसे एक ऑथर ने अगर कुछ पुस्तक लिखा है, उसको संपूर्ण विषय ये लिखेगा, ये चलेगा मार्केट में, पर उसको ही डाउट है कि इतना सब नहीं, मुझे तो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो चुका हूं। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि लोगों के पास टाइम कहाँ है ये सब पढ़ने के लिए, और टाइम है तो भी ये इतना कंफ्यूजन है कि अल्टीमेटली कंफ्यूजन ही हो जाएगा। पढ़ने के बाद उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो तभी यही व्यासदेव, बादरायण व्यासदेव जो भगवान के स्वयं अवतार थे, देखिए भगवान अपने खुद के उदाहरण से बताते हैं ये अपनी लीलाओं में। यही व्यासदेव सरस्वती नदी के पास में बैठ के, स्रोत के उधर बैठ के, एक दिन ऐसे ही बैठ के विचार कर रहे थे, मैं इतना सब लिखा है पर मुझे संतुष्टि नहीं है, आने वाले कलयुग को ये मार्गदर्शन देगा? कि मैंने तो इतना बुरा, अगर आज भी अगर आप बद्रिकाश्रम में जाएंगे, व्यास गुफा को आपने दर्शन लिया होगा, वो एक पुस्तक के समान है, पूरे पुराणास ये सब एक गुफा के नहीं जैसे, वो पुस्तक के जैसे एक बंडल के जैसे है, जैसे हम रखते ना इतने सब इतिहास। तो व्यासदेव बैठ के सोच रहे थे मैं क्या करूं क्या। तो तभी देखिए भगवान उनके उदाहरण से बताते, मुकम करोति वाचलम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान खुद के उदाहरण से, बादरायण व्यासदेव को उनके उदाहरण से बताना चाहिए, जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तो तब तक हमें मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। गुरु महत्व है अपने जीवन में। इन्होंने तो लिखा है एक गाइड के रूप में, पर वो गाइड वो खुद ही संतुष्ट नहीं है। तो तभी नारद जी आते हैं, नारद मुनि, वो भी त्रिलोक ज्ञानी है, और तुरंत व्यासदेव उनके गुरु के शरण में जाते हैं। तो नारद जी बताते कि क्या प्रॉब्लम क्या है। वो बोले मैंने इतने सारे वेदास पुराणास इतिहास सब कुछ लिखा हुआ, पर मुझे भगवान, मुझे गुरुदेव, मुझे यही पता नहीं कि ये कलयुग के आने वाले कलयुग में ये मार्गदर्शन करेगा कि नहीं। तो तभी नारद जी बताते हैं, व्यासदेव
आपने लिखा है बराबर है, ये मार्गदर्शक के लिए ही है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि तुमने ये सभी व्याद पुराणास और वेदा में आपने भगवान को गुणगान नहीं किया है। जब तक आप भगवान की पूरी तरह जितना जरूरत है उनके गुणगान जितना करना है वो आपने नहीं किया है, तो आपको संतुष्टि नहीं होगा। ये पुराणास जो पढ़ेंगे लोग उसमें कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि एक पुराणास में, शिव पुराण में भगवान शिव को माना जाता है, विष्णु पुराण में विष्णु को माना जाता है, ब्रह्मा पुराण। पर ये बताते कि आपने एक, जैसे आपने एक उदाहरण देता हो, जैसे एक फणस आपने खाया होगा, फणस। ये फणस ये जो ऐसा है जो कभी खाया नहीं है, अगर उसको बोला है कभी फणस, पहले बात तो फणस कैसा दिखता है वो पता ही नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कटहल छोटे है, जैक फ्रूट बोलते हैं ना, जैक फ्रूट, फणस या जैक फ्रूट, मेरे मराठी में सुना बोलते हैं ये जैक फ्रूट, इसलिए ऊर्ध्वमूलमधः शाक्यम अश्वत्थाम ब्रह्माद्ययम्, ये जो एक फणस के जैसे है, अगर जिसने खाया नहीं है, अगर सचमुच देखा जाए ये गांव में होता है फणस, जिसको पता है उसको काटने के लिए, अगर कोई पहला बात तो उसको ये कैसा रहता है, जैक फ्रूट कैसा दिखता है, फणस दिखता है, उसको अगर बताया जाता है, वो पहले बात इतना बड़ा फल इसको खाटे कैसे, उसमें सब एकदम बोलते कि खाटे के समान है, उसको काटना मतलब वो कोयता से काटना पड़ता है, उसके खोलने के बाद उसमें पूरा ये सब बोलते ना एकदम स्टिकी सब्सटेंस रहता है, एक हाथ पकड़ लिया तो वो पूरा निकाल, और उसके बाद उसको निकाल के उसका बीज को निकाल के उसके बाद वो खाना, वो बोलते भाई साहब इतना मुश्किल करेगा कौन? रेडीमेड कुछ है क्या? हाँ, नारद बोले ये प्रॉब्लम है, रेडीमेड है क्या? तुमने जाके सबके सामने ये कॉल ये है, ये पढ़ो, अरे ये पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? कोई लास्ट मिनट रिवीजन है क्या? ये इतना वेदा को आप रखें, इसलिए कभी कभी बोलते ना 10th स्टैंडर्ड या वो गाइड रहता है, गाइड में भी इतना सब रहता है, स्टूडेंट इतना गाइड है, मैं सोचा टेक्स्ट बुक को छोड़ के गाइड पढ़ो, गाइड इतना झाड़ा। तो उसके बाद ये ट्यूशंस ये लोग है ना, उन लोग जो क्लासेस में लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब यही आने वाला है, चलो कुछ नहीं आता तो ये कर लो। तो कलयुग में व्यासा ऐसे लोग हैं, लास्ट मिनट रिवीजन वाले हैं, तुम्हारे पास वो सॉल्यूशन है क्या? वो सॉल्यूशन है तो तुम्हारा ये पुस्तक पढ़ेंगे, और इसलिए तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, करुणा तुम्हें बहुत पतित है, तुम्हें पता है कि कलयुग में कोई चांस ही नहीं है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवतम लिखो। श्रीमद् भागवतम लिखेंगे, वेदाओं के जो सारांश है उसको निकाल के, इट्स अ राइपेंड फ्रूट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ये एक वृक्ष के समान है, वो वृक्ष का सारांश बता दो, वो सारांश जब आप देंगे देन ये मार्गदर्शक कर सकता है, ये मार्गदर्शक कर सकता है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। तुमने जितना लिखा हुआ है बता दे कि ये कौवे के समान है, व्यासाय तीर्थ व्यासति, ये लोग, इसमें कोई एक कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवतम लिखो। भागवतम इज अ राइपेंड फ्रूट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। जो व्यक्ति ये भागवतम का शरणागति जाएगा वो व्यक्ति ही इस भौतिक जीवन से पार कर सकता है। इसलिए यहाँ से शुरू होता है व्यासदेव जी का जो लीला है, ये जो, इसलिए मैं आज पढ़ रहा था, ब्रह्मा जी लास्ट में टेप नहीं, ये अध्याय के एंड में आ रहे हैं, अध्याय के एंड में आ रहे हैं, तभी वो बताते जा रहे हैं कि भगवान की बहुत सारे संपूर्ण लीला है, व्यासदेव के जो लीला है, उसके बाद वो बोलते बुद्ध की लीला है, बुद्धा, उसके बाद वो कल्कि अवतार आता है, और लास्ट में वो आज के जो श्लोक है वो बताते कि भगवान की इतनी लीला है, वो अनगिनत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर बताते हैं कि साइंटिफिकली अगर आप सोचेंगे, अगर इतने बड़े विद्वांस, इतने सारे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं,
अगर उनके पास उतनी क्षमता है कि इतने इस धरती पे कितने एटम्स है, पूरे यूनिवर्स में कितना एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने कण है, उसको भी गिनती करे, वो तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू काउंट ऑल द एटम्स जितना भी है। अगर वैसा व्यक्ति भी निकले, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की जितना भी एटम्स उसको काउंट करे, या पूरे आकाश को अपने बता दे कि ब्लैंकेट के जैसे पूरा कवर कर सकता है, वैसे भी किया, फिर भी भगवान की जो लीला है दैट इज अनकाउंटेबल, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। ये विश्वास आना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने लिखा है, उन्होंने पूरा एसेंस निकाल के दिया है। जैसे बोलते ना, इस कलयुग में कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, लास्ट मिनट रिवीजन है। और अगर जो व्यक्ति इज वेरी सीरियस अबाउट अपना जीवन का उद्धार करना, तभी वो इसको सीरियसली ले सकता है। जो बाकी युग में जितना भी तो तपस्या, यज्ञ, दान, अर्चना, उसको पूरा जो विस्तार ये कलयुग में नहीं होगा। इसलिए सभी आचार्य लोग मिलकर सिर्फ बोलते कि सिर्फ श्रीमद् भागवतम का अध्याय करो और भगवान का नाम जाप करो। अगर ये प्रोसेस भी किए तो यू विल अटेन द हाईएस्ट, आप ये हाईएस्ट प्राप्त करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब हमारे पास वो विश्वास नहीं है। द फेथ इज लैकिंग। बताते ना, सभी लोग पूछेंगे अरे ऐसा कैसे कंसेशन, हम लोग को इतना टफ एग्जाम और इन लोग को इतने इजी। तो एग्जामिनर को पता है, देखो तो कितना लोग पास होने वाले हैं, पास कितना होंगे वो तो देखो। बोलते ना सिंपल जो फेलियर लोग, क्योंकि एक बार जनरल निवास लोग बता रहे थे, ये प्रोसेस इतना सिंपल है कि हम लोग सोचे अरे थोड़ी इससे इतना इजीली प्राप्त होगा, क्योंकि विश्वास गड़ जाता है। विश्वास हमारे पास नहीं है। वो जो व्यक्ति को कंप्लीट विश्वास है कि कृष्णा इस श्रीमद् भागवतम में है, और ये जो शास्त्र बताता है ये सब कुछ इसमें, दिस इज अ फैक्ट, ये सत्य है, ये अगर हमें पता है, वो व्यक्ति कोई इस भौतिक जीवन को पार कर सकता है। जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि ये एंटायर भौतिक दुनिया, जो भौतिक दुनिया है, ये जेल के समान है। इट 1/4, ये 1/4 ही है, इस जेल के समान है। 3/4 बोलते ना, आधा से आधा वो भगवान के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, पूरे आध्यात्मिक दुनिया है, और हम लोग सब एक जेल के अंदर बैठे हुए हैं, पूरे सब लोग जेल। सभी लोग सोच रहे हैं कि हाँ यही जिंदगी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आतर रोड में जेल में जाएंगे तो अगर उसको बोलते ना अजन्म कारावास रहेगा, तो वो सोचेगा अभी तो क्या है, जिंदगी तो यही है, इसमें तो निभाना पड़ेगा, अरे यही हमारा किचन है, यही हमारा जिंदगी। तो क्या होता है, अनादिकाल से हमें बता दें कि अजन्म कारावास मिला है इस दुनिया में। तो हम अपना जो ओरिजिनल होम है, जो घर है, उसको भूल चुके। पता नहीं, अनादिकाल से हम पढ़े हैं, किसको पता है मेरे कोई सगे संबंधी है, हम यही दुनिया है। इधर जेल के अंदर एक घर बांधना, और एक घर के अंदर एक फैमिली करना, उन परिवार होना, और उसके बाद जेल के अंदर ही काम रोज, जैसे सबको पता है, उनको ऐसे बिठाया नहीं जाता है, उनको उनसे गार्डन बनवाया जाता है, कभी कभी उनको कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, और कभी कभी उनसे सब पेंटिंग्स किया जाता है, वहां से आर्ट वर्क। तो प्रॉब्लम क्या है, जो कैदी है वो सोचता है कि हाँ यही है सब कुछ जीवन, हाँ यही है जीवन, क्राफ्ट करना, आर्टिस्टिक करना, गार्डन बनाना, और उसके साथ वो सगे संबंध, वहां पे मित्र बनाना, अरे यही जिंदगी चल रहा है। तो सिर्फ उसमें से या कोई पत्थर तोड़ना, यही जिंदगी है, इसमें ही चलते रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस स्पेशली इस कलयुग में सब लोग सोच रहे हैं कि यही जिंदगी है, यही करना, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है।
किसी को पता नहीं कि जेल के बाहर की जिंदगी है। वो इतने बड़े बड़े बीमार होने की वजह से हमको पता नहीं, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। और जेलर बोल रहा है कि है दुनिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं यही जिंदगी है। अरे सब कुछ इधर इधर ही झगड़ा का, ये जगह मेरा है। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम ये बताता है कि माय डियर गेट अप, उठो, जागृता, ये तुम्हारा जगह नहीं है, यहाँ पे दुनिया, दिस इज 1/4, ये तुम्हारा जेल है, 3/4 वहां पे है। आप लोग कैदी हो, आप लोग कैदी हो। ये कैदी से निकलना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं दिया है। बाकी प्राणियों भी वही कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सभी कार्य है। उठो, ये ड्यूटी बाद में करते हैं, कर रहे हो, गार्डन बनाने, ये सब वो सब चल रहा है, दुनियादारी करना, स्टूडेंट लाइफ करना, बट उठो, देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड। तो तभी ओनली फ्यू, व्यासदेव यहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, इसलिए उन्होंने बोला कि इनको कैसे उठाओ। दैट इज कंपैशन नेचर। जो व्यक्ति त्रिलोकी ज्ञान, उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति दूसरे को दे सकता है। अगर उसको ही संपूर्ण विश्वास नहीं है, अरे कहां सचमुच है क्या, उनको कंप्लीट विश्वास था। श्रीपद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो प्रभुपाद जी को बता रहे थे, यू आर एजुकेटेड यंग पीपल, गो एंड प्रोपगेट, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, उनको बताओ। ये सिर्फ एक कल्ट का नहीं है, ये हिंदू धर्म का नहीं है, सब लोग सोए हैं। हम लोग एक अनादिकाल से जेल में आए, हम लोग सोचते हैं कि यही जिंदगी है, 84 लाख ह्यूमनी में घूमना, वो भी छोड़ो, यही चल रहा है। अपने आप को शरीर समझना ये सबसे बड़ा अनर्थ है। तो इसलिए कौन बता सकता है, इसलिए उनको ये लिखना पड़ा। गेट अप, नाउ इज अ चांस, नाउ इज अ चांस टू गेट अप। तो उसमें से बहुत कम, जैसे बताते ना, जिसको ज्ञान है वो उसको पता है, वो सिर्फ टेम्परेरी, उसको सिर्फ ड्यूटी की वजह से कर रहा है, पर बैक ऑफ द थॉट उसको यही विचार है, मुझे तो निकलना है, क्योंकि मेरे रियल संबंधी वहां पे है, वहां पे ही है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए उसको कोई इस दुनिया से लेन देन नहीं है। ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग सवाई मन कृष्ण पदार वेदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। रिसेंटली हाल ही में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 150 वर्ष का एनिवर्सरी मनाया गया था। उस समय आपको पता है कि जस्ट यही महीने में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने भी अच्छा कहा, पर उससे शुरुआत में एक सन्यासी जी ने एक अच्छा शब्द बताया था, श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गुणगान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए, ये आज का श्लोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1966, 1936 के टाइम उन्होंने एक अखबार छापने चालू किया, हार्मोनिस्ट मैगजीन, और दूसरा एक सज्जन तोषणी अखबार, न्यूज़पेपर, कोलकाता में वो न्यूज़पेपर छापने लगे। ये वो स्वामी जी उस दिन बता रहे थे। तो उस समय ब्रिटिश राज्य चल रहा था, तो उस समय उन्होंने बोले, कोई आकर पूछे, अरे स्वामी जी आप कोलकाता जैसे जगह पे इतने सारे अखबार तो है, आप वापस ये अखबार क्यों छाप रहे हैं? तभी वो बताए, ये जितने सारे कोलकाता के जो अखबार है ना, ये जेल का न्यूज़ है। जेल में क्या हुआ, वो कोपर करने में एक मर्डर केस हुआ, वो नवी मुंबई में ना किसने रॉबरी किया, वो आज अमेरिका के पॉलिटिक्स है ना, वो प्राइम मिनिस्टर, उसने संबंध जुड़ लिया। ये सभी न्यूज़ है ना, ये जेल का न्यूज़ है। अगर ये छोटा जेल में, जेल का न्यूज़ के लिए चार एक छोटा सा एक कॉर्नर, कोलकाता एक छोटा सा कॉर्नर का डेली कितना निकल रहा है,
4 न्यूज़पेपर निकल रहा है, तो सोच लीजिए जेल का बाहर जो है भगवान की जो त्रिलोक नाथा कॉन्स्टेंटली भगवान लीला कर रहे, तो मैं सिर्फ दिन में एक न्यूज़पेपर, ये मेरा मूर्खता है कि एवरी मिनट देयर शुड बी अ न्यूज़पेपर, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है सुनने के लिए और मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है प्रिंटिंग करने के लिए, इसलिए मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। बोलने के लिए मैं बोलते जाऊंगा, क्या आपके पास सामर्थ्य है सुनने के लिए? ये छोटा सा झील के बारे में तो सोच लीजिए। टुडे भगवान यही बोल रहे, हाउ मच, ब्रह्मा जी बोलते कितना मैं बता सकता हूं। अगर कोई साइंटिस्ट भी अगर वो एटम को गिन सकता है तो गिनने दो, पहला बात तो मुश्किल है, पर अगर उसने भी गिना, कैन यू काउंट द पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड? हम पास्ट टेंस हो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें ज्ञान नहीं है, वी डू नॉट हैव द नॉलेज। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक अच्छा स्टेटमेंट बताते हैं, व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी, व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी, एक अच्छा डेफिनेशन है। रियल नम्रता क्या है? हम लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं सबसे गिरा हूं, क्या उसको नम्रता बोलते हैं? प्रभु मैं सबसे गिरा हूं, मेरे से कोई नाटक तो कोई नहीं कर सकता है। व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी क्या है? Without duplicity, very good. But वो बोलते हैं real humility means the universal pride in the greatness of God and the genuine appreciation for the virtue in others. इसका मतलब क्या है? Real humility means the universal pride in the greatness of God. Problem क्या है? भगवान के महानता के बारे में हमें पता नहीं है। कृष्ण ना वही ना, वो छिछोरा वही ना जो द्वारका में 500 साल पहले, वही ना, उसको तुम भगवान मानते हो ना। और वही राम ना जो माता सी हो सीता, उसका कोई वी डू नॉट नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में अरे यार मेरे को उसका पता ही नहीं है तो मैं गुणगान क्या करूं? जब हमें पता है कि भगवान कितने महान है और हम कितने अनु है, तभी विनम्रता आता है। I'm no one। जो व्यक्ति के पास जो गुण है वो भगवान की देन है। ये जब महानता जब हम पता चलेगा तो तभी हमें पता चलता है कि इस बार भी दुनिया है। इसलिए व्यासदेव ने लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ किंगडम, बाहर है और तुम्हारा स्वभाव वहां पे है। यहाँ पे रोज जाकर, आज मैं देख रहा था गेटिंग ऐसे भी ट्रेन के अंदर घुसना, जैसे अभिजीत बाबू राह देख रहे थे, मैं इतना गड़बड़ में मैं थोड़ा उनको भी भूल गया। एक वक्त लिए मेरे उनका इतना कर्टिसी था, वो स्टेशन में राह देख रहे थे, मेरे को पहुंचना है और मैं उनको भूल गया। उनको शब्द था, उनको थोड़ा बहुत तो मैं वृंदावन चंद्र के साथ थोड़ा बहुत, पर हम इतने उलझे हुए कि हम भूल गए, अरे भागना है 9 बजे के कैसे भी कार्ड छापना है, यही है, और उसके बाद पहुंचना है। अरे जस्ट वेट, ये हमारा कार्य नहीं है। कौन चाहता है ऑफिस जाने के लिए? अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया नो ऑफिस टुमारो, बच्चे लोग बोलते नो स्कूल टुमारो, अरे नाचने लगेंगे, घर पे आते रहेगा, क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक गुण है। हमारा एक ही गुण है, सवाई मन कृष्ण पदार विंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमारा स्वाभाविक गुण है नित्य सिद्ध, कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाइंग कृष्ण, पर वी आर फोर्स्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वर्क हार्ड करो, भगवान को छोड़ के आए ना, करो। जेल में कोई, अगर कोई जेल में 56 भोग देगा तो कोई जेल छोड़ के आए ना? अरे इतना कौन बोला यहाँ पे? इसलिए दयालचंद को हमेशा बता रहे थे, एक बार वो बेलगांव में जाके बोल रहे थे ये दुनिया दुखालय में अशाश्वत है। तो तभी प्रभु जी आप जितना बोल रहे दुखालय उतना नहीं है प्रभु, क्या बोल रहे? इतना अच्छा
बंगलो है, इतने अच्छे अच्छे सुनने वाले बच्चे हैं, इतने अच्छे पैर, आप जो थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेशन कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। जब तक हमें वो कन्विंशन नहीं हो दिस इज अ डर्टी प्लेस, इसलिए लोग आचार्य लोग क्या बोले, इन्होंने ऐसे ही कुछ भक्ति सिद्धांत, दिस इज टॉयलेट, ये शौचालय है। क्योंकि कभी कभी ना बोलते ना, एक व्यक्ति को जगाना है तो उसको भाई तू समझ तू क्या है, तू किस में सोया है। हम लोग क्या आराम से लेटे, अरे अच्छा जगह है, भाई तू शौचालय में सोया है, इट्स अ डर्टी प्लेस, यहाँ दुनिया है बाहर। इसलिए आचार्य लोग, इसलिए प्रभुपाद निकल के बोल रहे दिस वर्ल्ड इज फॉर यू। इसमें कोई कास्ट, कोई क्रीड, ये हिंदू, ये मुसलमान के लिए, एवरीवन इज एनवियस ऑफ कृष्णा, दे आर पुट इन द प्रिजन हाउस। ये उपाधि के साथ हम इधर ही उलझे हुए हैं, इसलिए ये भागवतम में लेके आया हूं, ये टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, दिस अ टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। आप ये ले लो, इसमें कोई उपाधि नहीं है, ये मेरा भगवान, ये तुम्हारा भगवान, वो उसका भगवान, ये भगवान भगवान में झगड़ा हो रहा है, ये भगवान को ही छोड़ दो। व्हाट इज दिस? यू आर क्रिएटिंग अ हॉच पॉच। इसलिए श्रीमद् भागवतम की क्लियर कट, ये वेदा पुराण को हटा दो, ये कंफ्यूजन है। इसलिए नारद जी बोले राइट भागवतम। जो व्यक्ति उसको संपूर्ण विश्वास ही श्रीमद् भागवतम का शरणागति जाएगा, he has to become a pure devotee। इसलिए प्रभुपाद वो इसलिए जब जलदूत में लिखते हैं, वृद्धगंतस्ति अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् चित्तन्तस्ति अभद्राणि। जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा को सुनेगा, he has to become a pure devotee। वो विश्वास कितना है? One who takes a holy name once, he has to become a pure devotee। ये विश्वास कितना है? कृष्ण नाम ये इतना सुलभ नहीं है, ये कितना अपने पास विश्वास है? इसलिए जो भागवतम आज दिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ये विश्वास जो व्यक्ति को रहेगा, तभी वो दूसरे को बताएगा ना। सब लोग अपने अपने मौज मस्ती में, अगर घर पे आके, इसलिए सुबह सुबह जैसे प्रभुपाद क्यों बोले गुरु अष्टका, विश्वनाथ चक्रवर्ती क्यों लिखे संसार धावा नललीला। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले ये शौचालय है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले ये जलता हुआ जंगल है, भागो यहाँ से निकलो। और पहले के जैसे बोलते ना, कभी कभी वो अकस्मात चमकता है, कभी कभी बॉलीवुड पहले केस में लिखते हैं यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बच के निकल जाना। और मतलब अकस्मात कभी कभी वैराग्य, सब लोगों को पता है इस दुनिया में कोई सुख शांति नहीं है, पर फिर भी वो कोई प्रयास करना नहीं चाहता है, क्योंकि व्यासदेव जानते थे पीपल आर वेरी लेजी, बहुत लेजी है। बाकी सब कुछ कर सकते अगर सुबह निकल एवरीथिंग, क्योंकि कुछ मिल रहा है ना, रेवेन्यू मिल रहा है ना। इसमें क्या भागवतम पढ़ने से कुछ पेट भरता है क्या? कुछ कल से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा भरने वाला है यार, ऑल से भी मैं आज ही पढ़ रहा था भागवतम में। Prabhupada says that comfort zone for the body is considered a very superior। सभी अपने आप को शरीर समझ के इस शरीर को बराबर से देखो, शरीर का योगा करो, नियम करो, ध्यान अच्छे से ये करना चाहिए। Everyone considers the other body, इसको उत्तम रखना, यही भगवान सभी लोग का शंका चल रहा है। They have forgotten that they are not this body, they are the spirit soul। 100 साल कैसे भी खींचना चाहिए, 100 साल, अरे 100 साल कुछ भी नहीं है, आप इटर्नल हो, you are eternal, सच्चित आनंद। ये शरीर के साथ जुड़ो, ये कभी आ जाएगा जब जो व्यक्ति वो शरणागति रूप में आएगा, तभी वो आ जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सततम कीर्तयन्तम्, इसलिए हम बोलते ना नित्यम भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये कांस्टेंटली वही अध्याय को वापस कितना भी हम अपने आप को उत्तम समझे, क्योंकि मंदमती कभी भी वापस निकल सकता है। तो इसलिए मैं आज ये जो श्लोक है
course I'm good. ये जो स्पेसिफिकली ये जो श्लोक मैंने लिया, जो भगवान की जो महानता के बारे में, तभी ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है। सिर्फ मुंह बोली बात नहीं कि भगवान बड़े महान है। हाउ ग्रेट इज कृष्णा एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट आर वी। लास्ट में मैं आपको यही एक कथा बोल के समाप्त करता हूँ, जो हमारे महाजन ब्रह्मा जी ही बताते हैं, शास्त्र में ही बताते। चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वाराणसी में जब 10 दिन 1 महीना जब वो ज्ञान दे रहे थे, तब वो भगवान की महानता के बारे में बताते हुए ये कहानी बताते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं जो आज देखिए खुद के उदाहरण से बताते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज विभु, उसकी कोई सीमा नहीं। कृष्णा विभु है और हम अनु हैं, हमें कॉन्स्टेंटली याद है। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा एक बार द्वारका में आ जाते हैं। द्वारका में एक कहानी आपने बहुत बार सुना है। तो आकर वहां पे ब्रह्मा जी को सब लोग जानते ही हैं। तो तुरंत जैसे ब्रह्मा जी द्वारपाल जाते, द्वारपाल रोक देता है। क्या मुझे पहचाने नहीं, मुझे आप रोक रहे हो? नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। अरे आपके पहचान बोलो। पहचान बोलो। हाँ आपका पहचान बोलना ही पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है बोलो, ब्रह्मा है। जाके बोलो अगर तुम नहीं जानते तो तुम हमारे स्वामी जानते हैं, केशव द्वारकाधीश जानते हैं, जाके बोलो ब्रह्मा है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा है। देखिए भगवान दिखाना चाहते थे आपके क्योंकि भक्तों के उदाहरण से, जाके पूछो कौन सा ब्रह्मा, गो एंड आस्क व्हिच ब्रह्मा। तो बोले स्वामी पूछ रहे कौन से ब्रह्मा, क्या पूछ क्या रहा है, कौन सा ब्रह्मा? इस पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, क्या कुछ भी मजाक कर रहा है क्या? कौन सा ब्रह्मा? जाके बोल चार कुमारों का पिता ब्रह्मा हूँ या चतुर्मुखी ब्रह्मा, और उसके साथ ये भी बोल देना 4 कुमार के ब्रह्मा। तो जाके बोलते हैं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 कुमार की पिताजी ब्रह्मा। अच्छा ठीक है अंदर बोलो। तो ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति करने लगते, भगवान ये मेरे सौभाग्य है। पर बाद में एक उनकी शंका है, वो बोलते कि 1 क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए है। 1 क्वेश्चन, भगवान मुझे डाउट आ रहा है कि मुझे छोड़कर और भी कोई है? अगर है नहीं है तो आपने मुझे क्यों पूछा द्वारपाल को पूछने के लिए कि कौन से ब्रह्मा? अगर नहीं है तो आप मुझे अलाउ करना चाहिए था ना। तो तभी भगवान सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ क्लैप भी नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। और तुरंत मुस्कुराने में ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, जो 4 मुख के मंडल के ब्रह्मा, वो देखते कि पूरे सराउंडिंग चेंज हो जाता है। पूरा जो द्वारका का जो दृश्य है वो अलग हो जाता है, उनकी नजरिया चेंज हो जाता है। तुरंत एक होते ना ब्रह्मा जी की जो ये विमान है, वो बोलते कि स्वान मतलब हंस। जैसे भगवान विष्णु की गरुड़ है, वैसे ब्रह्मा जी हंस के पर तुरंत 10 मुंडी वाले ब्रह्मा आ जाते हैं और वो आके खड़े होके भगवान सुन। अच्छा ये था क्या? उसके बाद 20 मुंडी, अरे ये कौन? और गिनते 1 2 3 4 5, अरे 20 मुंडी वाले ब्रह्मा, और उनका साइज भी बड़ा, अरे वो भी आ जाए। अच्छा ये 2 थे क्या? और उसके बाद 2 नहीं, भगवान का स्पीड बढ़ाते हैं, 30 40 100 1000 10,000 20,000 40, मतलब अनगिनत। और तभी बोलते हैं कि ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना,
विभु चतुर्मुखी ब्रह्मा खुद को अनु, तभी पता चला आई एम इनसिग्निफिकेंट। सिर्फ भगवान महान नहीं है, आई एम इनसिग्निफिकेंट। और ये चतुर्मुखी ब्रह्मा को छोड़ के बाकी सभी ब्रह्मा एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। ये एक ही ब्रह्मा थे जो सभी ब्रह्मा को देख रहे थे। बाकी कोई ब्रह्मा, एक 10 मुंडी वाला ब्रह्मा 20 मुंडी वाले को देख रहे, वो एक सभी पूछते थे भगवान आपने मुझे क्यों बुलाया? 20 मुंडी वाले पूछे भगवान, और भगवान सबको आंसर दे रहे थे। हाँ, एक गोविंदा सबको आंसर दे रहे थे और एक दूसरे को पता भी नहीं कि बाजू में दूसरा मुंडी वाले ब्रह्मा, सिर्फ चतुर्मुखी ब्रह्मा देख रहे थे। मैं तो एक कीट, एक एंट, एक नीचा तो तुच्छ व्यक्ति। अरे बाप रे, इनके पैर के नीचे मैं दब भी जाऊंगा, मेरा साइज तो देखो। और तभी बोले भगवान ऐसे ही बुला लिया, ऐसे ही बस मन लग गया, बोल देख ले अभी चले जाओ। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड, आपका मनमोहित इतना है कि आप हमें बुला लिए, आप इन्हें चलेगा। और सब लोग चले जाते हैं और तभी ब्रह्मा को पता चलता है गोविंदमादि पुरुषं तमहं भज। भगवान was so great। जब हमें पता चलेगा कि when you are deeply absorbed in the greatness of the God, that is real humility। भगवान I am so insignificant, तभी हम यह आस्वादन करेंगे शरणागति रूप में। जब हम नहीं तो हम एक रिचुअल के लिए when you take every word और भागवतम को हो ध्यान पूर्वक जब हम सुनेंगे तभी भगवान रिवील करेंगे। इसलिए व्यास देव ने अवतार लिए थे। This is the torch light of knowledge, the torch light of knowledge। अगर जो व्यक्ति, इसलिए श्री प्रभुपाद जब भागवत कहते I am just escorting the भागवतम, मेरा कोई नहीं है, मुझे संपूर्ण विश्वास है अगर इसका कोई व्यक्ति ये भागवतम का शरणागति ले, your life will be perfect। ये हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब हम इसको लेंगे तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। इसलिए हम सोचे कि आज ये जो हम भगवान व्यासदेव, आपको सब्जेक्ट बहुत थोड़ा कभी-कभी एकदम थोड़ा हमें टेस्ट नहीं हुई, मतलब कभी-कभी हमें ड्राई हो जाता है, मुझे भी, पर अल्टीमेटली हमें रिलीज करते 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 बोलते ना, प्रॉब्लम भागवतम ही नहीं है, प्रॉब्लम भागवतम ही नहीं है, डिसीज हमारे में। अगर जॉन्डिस पेशेंट को बोले गन्ने का, ये क्या आयुर्वेदिक का दवाई दिया है, ये गन्ने का मजाक कर रहे हो, गन्ने का जूस ये इतना कड़वा है, कुछ आयुर्वेदिक का दवाई नहीं, बोले अरे बेटा समझ ले तू जॉन्डिस पेशेंट है। दयालु अवतार को हमेशा हमें गन्ने का जूस देते हैं। अगर मैं उनको बोला अब मैं जॉन्डिस पेशेंट हूँ, अगर एक दिन मैं प्रभु जी, मैं बोल नहीं पियो, अरे नहीं पियो, और मैंने जब पिया, अरे प्रभु जी मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, एक आयुर्वेदिक दवाई, अरे प्रभु जी गन्ने का जूस है, आपने देखा सामने, नहीं प्रभु एकदम कड़वा है, कुछ नहीं प्रभु आपको पी लिया हुआ है, आपको पी लिया हुआ है, पी लिया जो हुआ है उसको गन्ने का जूस कड़वा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कड़वापन गन्ने में है, कड़वापन हमारे हृदय में है। तो रोग सॉल्यूशन क्या है? पीते रहो, पीते रहो, जागते रहो, बोलते ना जाप करते रहो, कॉन्स्टेंटली नित्यम भागवत से पीते रहो विद विश्वास। One day I will be cured of this disease, I will be cured of this disease। इसको अलाउ श्रद्धा से पीते रहना पड़ता है, नहीं होगा, नहीं कड़वापन नहीं होगा। और कभी कभी जब रोग कम होते जाते हैं, हाँ थोड़ा मिठास हो रहा है, थोड़ा मिठास हो रहा है, उतना मिठास नहीं आया है जितना श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य, पर मिठास है, उतना हम फेथ डेवलप कर देंगे। इसलिए हम दूसरे को बोलते हैं दूसरा जॉन्डिस पेशेंट, अरे इतना नहीं है बेटा, मेरा भी यही हालत था, पर पीते क्या अभी थोड़ा तू भी पीते रहे। That's why संघ is important। यहाँ सभी लोगों को हमें जॉन्डिस हो चुका है, उतना विश्वास नहीं है पर पी रहे है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु बोल रहे हैं, उनके गुरु ने उन्होंने आस्वादन किया है। श्रीमद् भागवतम is the ripened fruit, let us drink with faith।
एक दिन वो जॉन्डिस निकल जाएगा। इसलिए मैं एक शब्द बोल के डेफिनेशन में प्रभुपाद सेज व्हाट इज चैतन्य चरितामृत, एक डेफिनेशन में बोल के आपको एंड करता हूँ। चैतन्य मतलब, अगर मैं आपको ये शब्दों को तोड़ के बताता हूँ, चैतन्य मतलब लिविंग फोर्स, कॉन्शियसनेस। आपको पता है चैतन्य उसके हृदय में जो मृत्यु मरा हुआ व्यक्ति में और जिंदे व्यक्ति में क्या बोलते हैं, उसके उसमें चैतन्य है, उसमें प्रज्ञा है, और इसमें प्रज्ञा नहीं है, उसको बोलते हैं चैतन्य, लिविंग फोर्स। चैतन्य चरिता, चरिता मीन्स कैरेक्टर, चरिता बोलते ना, उसका चरित्र क्या है, चरित्र मतलब कैरेक्टर। अमृता मतलब क्या है, अमृता मतलब नेक्टर, इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी अमृत बोलते ना, अमृता मतलब जो मुक्ति, जो अमृत प्रदान करता है, उसके बाद उसको कोई मरण नहीं, इमॉर्टैलिटी। तो प्रॉपर एक क्लियर डेफिनेशन बोलते, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग फोर्स इन इमॉर्टैलिटी इज चैतन्य चरितामृत। द कैरेक्टर, जो स्वाभाविक गुण है, जीव का स्वाभाविक गुण है, कैरेक्टर ऑफ द लिविंग फोर्स, जो हमारा स्वाभाविक नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कैरेक्टर है, लिविंग फोर्स इन इमॉर्टैलिटी। जब हम संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं इस भौतिक दुनिया से, सब कंप्लीटली क्लेश के बिना पूरा प्योर हो जाते, दैट इज कॉल्ड चैतन्य चरितामृत, जो श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिट कर रहे थे। हम ये नहीं बोल सकते वो चैतन्य में एवरी लिविंग एंटिटी हैज गॉट दैट क्वालिटी ऑफ लविंगली रेसिप्रोकेशन विद कृष्णा। प्रॉब्लम क्या है, हम अभी मॉर्टल है। जब वो क्लियर हो जाता है तो ये गुण ऑटोमेटिकली आना ही आना है। प्रॉपर्ली से बताइए, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंपोजिशन ऑन द माइंड। ये मैं दबा के नहीं, इट इज अ नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी टू लव कृष्णा। कृष्णा इज नॉट माई गॉड, कृष्णा इज नॉट दामोदर सखा प्रभु का ही भगवान है, दामोदर भाव प्रभु का है या किसी का। कृष्णा इज गॉड फॉर एवरीवन। ये स्वाभाविक गुण है। जब ऑटोमेटिकली जब चैतन्य क्लियर हो जाता है, देन स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिट कर दे, उसका एक क्वालिटी जितना आ जाता है हमारे पास। दैट इज व्हाट वी आर एंकरिंग। ये नेचुरल इंक्लिनेशन, इसलिए व्यासदेव जी ने ये लिखा हुआ है। तो आज हम इस सब कथा को समाप्त करने से हम ये बताते कि एक प्रज्ञा ले ले या संकल्प ले ले कि इफ वी आर सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर हम सीरियस है, वी आर सिंसियर, हमारा जितना भी कंडीशनिंग है, कितना भी हमारे पास रुकावट है, फिर भी हमारा सिंसियरिटी दिखा के हम भगवान श्रीमद् भागवतम का तो शानदार नतीजा, लेट अस डू दैट। फिर भगवान अपना लीला बताएंगे। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, मैंने अपना जो समय से ज़्यादा लिया और मेरे पास उतना हुआ भी है, इसलिए थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए कभी कभी मैं आप मेरे टूटने की वजह से मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा समय मैंने समय अरे वो किसी का कोई प्रश्न नहीं तो श्रीमद् भागवतम का भी एसेंस का एसेंस इज हरि नाम, इज हरि नाम। इजीएस्ट प्रोसेस बोलते ना, लिफ्ट के जैसे फास्ट एक बैक टू द गोलोक वृंदावन कॉन्शियसनेस चैतन्य चरितामृत प्राप्त करने के लिए जाप हम एक राउंड करेंगे और उसके बाद